Hello everyone. Welcome back students. Let's discuss the poem Keeping Quiet, poem number 3 by which is written by Pablo Neruda and it is taken from Flamingo book class 12th. And here again as a sort of reminder I am just letting you know that I will be discussing the central idea of the poetry or the central theme of the poetry जिसमें मैंने आपने स्पेसिफिकली जो नोट्स हैं उनको आपको प्रोवाइड किया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच नोट्स यू आर एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग जो आपके इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं जो कॉमन फ्रेजेस हैं फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं उनको आप एलेबोरेट कर सकते हैं पोइटिक डिवाइसेस आपको क्लियर होंगे और उसके साथ साथ यू आर गोइंग टू कवर अप ऑल द एस्पेक्ट्स जिसमें आपके MCQ बेस्ड long answer and short answers. So let's proceed further. So firstly you are going to talk about that the poem Keeping Quiet is beautifully written by Pablo Neruda. So here the poet emphasizes the necessity is to involve oneself in introspection. आपने ये word ज़रूर सुना होगा introspection का meaning होता है that one should involve oneself इन सेल्फ एनालाइज हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें वेयर वी आर राइट वेयर वी आर रॉन्ग एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर थॉट्स एंड एक्शंस कि हम लोग दूसरों को तो देखते हैं कि व्हाट अदर्स आर डूइंग सो इट इज़ आवर ड्यूटी कि फर्स्टली फॉर आवर सेल्फ ग्रोथ नेशन की ग्रोथ की बात तो हम बाद में करेंगे बट फर्स्टली इफ़ वी टॉक अबाउट सेल्फ ग्रोथ तो हमें सबसे पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करनी है हमें अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना है हमें अपने आप को सेल्फ चैनलाइज करना है ओके सो अपने आप की इंग्लिश होगी आपकी सेल्फ चैनलाइज करना सेल्फ एनालाइज करना and to rectify oneself that where you are right and where you are wrong and definitely it would result not only in an individual growth but also in nation's growth क्योंकि एक individual को ही जब उनकी टीम एक बन जाती है तो उसके बेस पे it is going to create a nation's growth. In other words, the poet highlights the importance of national integration. National integration किस फॉर्म में होगा? When proper unity is there, devoid of the feelings of bitterness and enmity in the society. And these could be attained अगर ये national integration हमें attain करना है तो what are the ways? By achieving unity and by developing a feeling of brotherhood and togetherness among the nations. So in the beginning itself, the poet appeals his readers to keep quiet and be still for a count of 12. आप देखेंगे in the beginning itself यहाँ पर 12 नंबर को signify किया हुआ है. So what is the meaning of number 12 here? Maybe it is relevant of the time क्योंकि आप देखेंगे clock में भी आपके 12 numbers होते हैं you are having 12 months of the year that is why it seems that the poet is giving importance or a specific place for the same like we all human beings get ourselves occupied in achieving our materialistic growth हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में अपनी materialistic growth की बात करते हैं and we all consider कि हमारी materialistic growth है it means we are successful materialistic का meaning क्या होता है it is related with monetary terms it is related with money and with the help of money we can achieve anything we can get anything it is our mindset no and on the basis of ki how much the person is earning how much standard of living he is having that person is successful okay it is the casual mindset which we see in our surroundings और हम सभी का भी most of the times यही perception होता है so here the poet wants to say that we all do not take out the time to reflect on our actions and thoughts हम लोग हर चीज़ को कंसिडर करते हैं कि हमारे कितना हम ग्रोथ कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक फॉर्म में हमारा कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ है बट हम अपने जो हमारे थॉट्स हैं जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है जो हमारे एक्शंस हैं वी आर नॉट एट ऑल कंसिडरिंग फॉर द सेम सो नरूडा continues by telling not to speak in any language आप देखेंगे जो बिगनिंग में ये दिया जाता है नंबर 12 देन नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज ये आपके
पोइट्री के मेन थीम से कनेक्टेड है. दैट इज़ वाई इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग. तो नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज का क्या मीनिंग है? लैंग्वेज मीन्स जिसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है. लाइक ही सजेस्ट दैट एवरी वन शुड बी स्टिल, silent and quiet all together. Thus, only if all are quiet, आप इमेजिन कर सकते हैं कि lot of 24/7 मल्टीपल एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, ऑफिसेज चल रहे हैं, कंपनीज चल रही हैं, रोड्स पे ह्यूज ट्रैफिक है, ह्यूज क्राउड यू कुड एक्सपीरियंस एंड फील एवरीवेयर. देन if the poet suggests that everyone should be silent and still all together, आप इमेजिन करिए कि पूरी जो रनिंग सिनेरियो है, जो रनिंग सराउंडिंग्स है, अगर वो कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ 12 तक की काउंटिंग तक के लिए अगर वो स्टिल या साइलेंट हो जाती हैं, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन? द रिएक्शन विल बी ओनली वन लैंग्वेज वुड बी स्पोकन, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस. और साइलेंस की लैंग्वेज ही प्रैक्टिसेबल होगी. तो आप इमेजिन कर सकते हैं इफ एवरी वन इज़ क्वाइट, एवरी वन इज स्टिल, सो देयर विल बी नो feelings for amenity, there will be no feelings for bitterness or any sort of negative emotions for one another. Next one, he is talking about arms. आप देखेंगे यहाँ पर डबल मीनिंग है. इट इज़ कंसिडर्ड एज पन भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें प्लेइंग ऑफ वर्ड्स होता है, because the words are taken into another manner but it is interpreted in another way. Okay, actuality में इसका meaning कुछ और है but it is spoken in different way. So here the poet suggests that do not involve in any activity. आप देखेंगे arms जो word होता है, it is one of the body organs. तो arms से हम क्या करते हैं, हमारी bodily movements होती हैं, हम लोग इससे activities करते हैं, अपने regular task करते हैं, and हमारी जो फिजिकल सेंस होती है हम उसको एक्टिवेट करते हैं. एंड ही सजेस्ट दैट वन शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी. एंड एक आर्म्स का मीनिंग आपके वेपन्स भी होते हैं, जो बैटल के टाइम पे, वॉर के टाइम पे जिनको यूज़ किया जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज वेपन्स. सो ही सजेस्ट दैट वन शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी, ना तो फिजिकल एक्टिविटी हो और ना ही वेपन्स की, जो बैटल के टाइम पे उनको आर्म्स को यूज़ किया जाता है, वेपन्स को यूज़ किया जाता है, दैट शुड बी डन. सो दीज आर द वेज टू स्टॉप ऑल वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन. इफ़ ऑल एक्शंस आर सीज्ड, अगर सभी एक्शंस को स्टिल किया जाए, उनको मोमेंट्री रोक दिया जाए, सो इट वुड क्रिएट अ डेफिनेटली अ मार्वलस प्लेस टू लिव और टू सर्वाइव. नो, सो फर्दर मोर ही कॉल्स द मोमेंट एन एक्जॉटिक वन. एक्जॉटिक वर्ड का मीनिंग होता है जहाँ पर आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस को फील करते हैं, यू एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हैप्पीनेस इन योर सराउंडिंग्स. सो द पोएट इज सजेस्टिंग वेयर if you are counting up to 12 and no language is spoken, only one language of silence is implemented, then there would be, and no arms are used, arms को भी use नहीं किया जा रहा, everywhere only still, stationary or no activity is going on. So this earth will become a definite, a beautiful as well as a marvelous place to survive or to live. एंड इसी सिचुएशन को, उस फील को वो एग्जॉटिक मोमेंट कहता है, उसको एक्सट्रीम हैप्पीनेस के साथ कोरिलेट किया जा रहा है, हेवन के साथ कोरिलेट किया जा रहा है. देयर वुड बी नो रशिंग अराउंड एंड कम्पीटिंग विथ ईच अदर. तो ऑब्वियसली है जहाँ पर स्टिल मोमेंट है, किसी का किसी के साथ कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, नो रश, नो इंजन्स, नो मशीनरी, इन सभी का यूज़ किया जा रहा है. सो ही इज़ सेइंग दैट दीज एक्टिविटीज़ जहाँ पर आप देखिए इंजन्स की, मशीन्स की, रशिंग की, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बात हो रही है. सो ही सजेस्ट दैट द आइडिया ऑफ गिविंग हॉल्ट टू टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड का मीनिंग क्या होता है? साइंटिफिक वर्ल्ड, जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, एंड वी ऑल हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स. आप देखेंगे हर कंट्री, हर एक इंडिविजुअल, हर एक नेशन and variety of places, they are booming. टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस हो रही है. सो फॉर द सेक ऑफ वंस ग्रोथ, बट द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है?
जो सिचुएशन है वो मिजरेबल है, पैथेटिक है. इन विच मैनर? फॉर द सेक ऑफ वंस ग्रोथ. एक पर्सन अपनी ग्रोथ के लिए, हम कुछ भी एक्शन करते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, वी आर लर्निंग समथिंग. हम लोग मॉनेटरी गेन्स लेते हैं तो हमें लगता है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ आर ग्रोथ. सो पीपल आर फॉरगेटिंग द रूट्स. द पोएट wishes to correlate this idea. नो डाउट मटेरियलिस्टिक ग्रोथ तो हो रही है, बट पीपल आर फॉरगेटिंग देयर रूट्स. और रूट्स में क्या आता है? हमारी फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, जहाँ पर फीलिंग ऑफ जेनरोसिटी एंड ह्यूमैनिटी इट शुड बी क्रिएटेड. और वो क्रिएट कैसे होगी? बाय अ कॉमन लिंक ऑफ पीस एंड क्वाइटनेस, जहाँ पर एक कनेक्शन क्रिएट होगा पीस का और क्वाइटनेस का. Then proceeding further, the poet talks about the fisherman. यहाँ पर वो fisherman की बात कर रहा है, who hunts whales, and of a man who has injured his hands by collecting salt. आपने देखा होगा salt को collect करने के लिए अलग कैटेगरी के people हैं, and whale को catch करने के लिए भी, hunting के लिए भी fisherman होते हैं. Okay, so in one way or the another, what they are doing? Basically, they are violating their nature. They are against the nature for their selfish motives. कुछ some sort of monetary gains के लिए, अपने selfish motives को fulfill करने के लिए they are doing this task in spite of the fact they sometimes they are getting wounds or they are injured, but their main purpose is to gain money by violating or by exploiting nature. So the poet wishes to suggest that silence is the only source which is going to motivate in order to maintain ecological balance. हम जब नेचर को, जो इसमें पॉल्यूशन है, जो इसमें नेगेटिव सराउंडिंग्स क्रिएट की जा रही हैं, तो इन सब चीज़ों का सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि साइलेंस को क्रिएट किया जाए, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी कंट्रोल में होगा, एंड वी कैन प्रिजर्व दिस एसेट फॉर आवर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन. Okay, then we will have a beautiful natural bounties. Then in the next stanza he is talking about that all the warfare activities. warfare देखिए आप नेम से ही क्लियर हो रहा है, जिसका मीनिंग होता है कि warfare activities कौन सी होती हैं, जिसमें आप देखते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वॉर्स हैं, बुलेट्स हैं, बॉम्ब्स हैं, डेडली गैसेज हैं, ग्रीन वॉर्स हैं, पॉइजनस गैसेस हैं और वेपन्स हैं. इन सब की प्रोडक्शन की जाती है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. सो इट इज़ सजेस्टिंग दैट ही स्ट्रेस्ड दैट वॉर्स विथ फायर एंड ऑल दैट दीज शुड बी completely stopped. Okay, because what is the result of the same? It causes destruction to mankind and loss to property. तो इसमें सिर्फ लॉस किसका होता है? प्रॉपर्टी का और मैनकाइंड का. Okay, and he also gives the suggestion that one should go for new beginning. New beginning का meaning क्या है? One should have the attitude to cleanse oneself. आप देखिए इसमें लाइन है cleanse oneself means अपने आप को वॉश करना, अपने आप को एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जाना, physically and mentally. Then he is saying कि if everybody is running for war to settle the things and all that, if what is the result? सबको डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो who is going to celebrate the victory? जब कोई बचेगा ही नहीं, there will be no survivors to celebrate the victory. Okay, but at the end he is not going to confuse the readers कि आप inactivity करो and you are not going to do any action, सिर्फ still होके अपनी growth की तरफ focus मत करो. But the poet wishes to convince his readers by saying that one is supposed to increase humanity, mankind, ठीक है, childhood और brotherhood, not childhood but brotherhood को flourish किया जाए, nature को bloom करने दिया जाए. ओके, जिससे कि नेचर की अपनी ग्रोथ हो, एंड नेचर की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ तो उसी पर ही डिपेंड करती है. सो द अर्थ ऑल्सो टीचेज अ वैल्यूएबल लेसन एज इट प्रोटेक्ट्स द न्यू लाइफ, क्योंकि अर्थ हर चीज़ को एक सपोर्ट देती है. ओके, एंड in the same manner let it flourish and let it blossom and bloom.
So he is going to say that one should not be getting confused that we should be inactive, कि हम लोग inactive हो जाए, हम लोग अपनी activities ना करें, कुछ काम ना करें, but we should focus on constructive और productive activities, कि हम कुछ productive work करें जिसमें किसी का बेनिफिट हो, नेचर को जो है उसको बूम करने का, उसको ब्लूम करने का मौका मिल सके, एंड इट इज़ गोइंग टू फोकस ऑन नॉट ओनली ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ बट ऑल्सो ऑन नेशंस ग्रोथ, क्योंकि बिकॉज यू कुड से दैट लाइफ इज़ बेसिकली एन ऑन गोइंग प्रोसेस, लाइफ इज़ इन कंटिन्यूएशन, हर चीज़ प्रोसेस में चलती रहती है. वन जनरेशन एंड्स देन न्यू जनरेशन टेक्स प्लेस, बट वन इज़ नॉट सपोज टू बी इनएक्टिव, कि हम अपने आप को इनएक्टिव कर लें, लेज़ी कर लें, एंड वी आर नॉट गोइंग टू फुलफिल आर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वॉट एवर आर टास्क इज़ देयर, वी आर सपोज टू फुलफिल दैट वन, बट वी शुड फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ ऑफ person as well as which leads to the benefit of society. ठीक है. Okay, now proceeding further, the last one I will be talking about poetic devices. आपके फर्स्ट आप देखेंगे आयरनी. अगेन इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन गो फॉर फिगर्स ऑफ स्पीच. in the description you are given the link, I have dropped the link there. ओके, यू कैन गो एंड गो फॉर स्पेसिफिक आपके जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसमें मैंने कुछ पोएटिक डिवाइसेस को कवर अप किया है. वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग माय नेक्स्ट वीडियो ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच, जो उसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं. एटलीस्ट 2 more पार्ट्स आई विल बी शेयरिंग इट विद यू. सो आपका आयरनी रहेगा जिसमें आपके आप देखिए ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही हैं कि एक्चुअलिटी में वॉर को इमेजिन किया जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू सेटल्स एवरीथिंग, बट उसके रिजल्ट क्या होते हैं, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द सेम, ओनली लॉस ऑफ एवरीथिंग. देन मेटाफर है आपका पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज ड्रॉन इन द शेड, ये भी आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. रेपिटेशन में जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को, फ्रेज को, सेंटेंस को रिपीट करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ रेपिटेशन. और सिम्बल्स हमने अपनी फर्स्ट और सेकंड पोम्स में भी किए हैं, जहाँ पर वेराइटी ऑफ नेचुरल इमेजेस को क्रिएट करके सिम्बल्स से को रिलेट किया है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. लाइक फिशरमैन इन द कोल्ड सी, देन हार्म वेल्स, उसके बाद है मैन गैदरिंग सॉल्ट, उसके बाद है हर्ट हैंड्स एंड ऑल दैट. होप यू enjoyed this video, you have understood the matter, and stay tuned for my forthcoming videos if you like my content. Thank you so much.